Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 11th history, chapter 2, but according to your new syllabus, this is chapter 1, writing and city life. My dear, there is no need to explain the information which is already given by me in your previous class regarding your syllabus. I hope you are all aware of your syllabus. सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। इसी वजह से ने इस साल आपके सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया। इवन अगर आप मेरा क्लास 11 का फर्स्ट वीडियो 18 अगस्त का देखेंगे तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से ये आपको समझाया है कि आपके जो बुक के जो सिलेबस हैं वो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, थीम 1, थीम 2, थीम 3। सेक्शन 1 में थीम 1, 2, 3, सेक्शन 2 में पे थीम, उन सारी चीज़ों को मैंने लिख के भेजा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के एक एक चैप्टर को सीबीएसई में डिलीट किया। सेक्शन 1 से फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द टाइम, सेक्शन 2 से नोमैडिक एम्पायर और सेक्शन 3 से कॉन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर, चैप्टर 8। चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 दैट हैज़ ऑलरेडी डिलीटेड. So in your whole chapter 11, 3 chapter has deleted, so you have to read only how many chapter? 8 chapter. कुल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 चैप्टर में चैप्टर 2 आपका चैप्टर 1 हो गया और इस चैप्टर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ को हम लोग अपनी पिछले क्लास में शुरुआत इसकी कर चुके हैं। हमने आपको इस चैप्टर में शुरू में राइटिंग एंड सिटी लाइफ टाइटल की मीनिंग समझाई। What I told you in the starting of this class, I have already informed you about that. The title of this chapter, writing and city life. Writing and city life. Here there are two words, writing and city life. It means this was the first civilization where they emerged writing skills and they lived in city. Mesopotamia, as you know, as I informed you, that it is the one of the oldest civilization in whole world. Meaning of Mesopotamia, Mesos is Potamus. Middle and river, Mesos, that is Mesopotamia is the Greek word, meaning Mesos and Potamus. Here if you will read, the name of the Mesopotamia is derived from the Greek word Mesos, meaning middle, and Potamus means river. So there is no confusion regarding it. This point has already explained by me in your previous classes. I also discussed that the expansion of Mesopotamia from which place to which place, where I told you that the Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BC. So that the kingdoms of that entire region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt, the language and script of the Mesopotamian. It was used by Pharaoh of Egypt. And I also told about that the Sumer Akkad in the southern part of this civilization, two cities, Sumer and Akkad, that is the prominent city. Sumerian is the first language of the Mesopotamia. This all information explained by me. Even I also explained about that the methodological story which is given in Bible and how the British try to relate this civilization, Mesopotamian civilization. I was discuss about that the Simar of one word. Simar means the city which was made from bricks. Simar को उन्होंने सुमेर समझा और उस पर पैसे खर्च किए और फिर एक बार सभ्यता में बहरहाल ब्रिटिशर्स ने जो भी समझा, बाइबल की कहानी को जो प्रूफ करने का प्रयास किया, वो सारी चीज़ें ठीक थी। इससे एक नई सभ्यता के बारे में उसके एक्सप्रेशन के लिए जो रिसोर्स चाहिए थे वो पूरे थे। हमने आपके पुराने वीडियो में इस मैप को भी शो किया था। मैप में मैंने आपको बताया था कि इस मैप के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा
मेसोपोटामियन रीजन कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सो उसके आधार पर हमने मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी की बात की, और हमने पाई दैट रीजन वाज completely covered by mountains, plains, deserted lands, and forest also. I mean to say that the plateau regions plants, और फिर यहाँ पे पास्टर्स इंडस्ट्री भी थी, एग्रीकल्चर भी हो रहे थे, फिशरीज के भी हमको एविडेंस हैं। ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र को रीच कर रही थी। यूफ्रेटिस की जो नदियाँ थी, उनके जो चैनल्स थे वो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, जिससे इरीगेशन फैसिलिटी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल थी। हमने आपको लास्ट की क्लास में कुछ शहरों के नाम मेसोपोटामिया के बताए थे, मारी, बेबीलोन, बगदाद अभी नाम है, पहले कुछ और थे, उर, निर्मोद, असुर, असीरिया, सारी चीज़ों पे हमने लास्ट क्लास में बात की थी। हमने आपको पिछली क्लास में इन चीज़ों के बारे में बताते हुए सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म को भी हमने बताया, और हमने कहा था कि द अर्लीस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया डेट बैक ऑफ द ब्रोंज एज 3000 BC. Bronze is an alloy of copper and tin. Using bronze meant the procuring these metals often from the great distance. Metal tools were necessary for the accurate carpentry, drilling beads, carving stones, seals, cutting, sail for inlaid furniture. Etc. Mesopotamian weapons were also of bronze. For example, the tips of the spear that you see in the illustrations on page 38. मैंने आपसे कहा था मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण भी ब्रोंज एज का माना जाता है, 3000 BC को माना जाता है। 3000 की शुरुआत में ही शहरों का विकास हो चुका था। कॉपर और टिन के जो मिक्सचर से ब्रॉन्ज बना, तो इसका इस्तेमाल मेसोपोटामिया में बड़े पैमाने पर किया गया। कांसे का प्रयोग का मतलब यह है कि धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कॉपर नहीं अवेलेबल था। बढ़ई का काम, कारपेंट्री, सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर पे काम करने, धातुओं के औजारों की जरूरत, मतलब इन सारे कामों के लिए छोटे छोटे धातुओं के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया हथियार जो वेपन्स हैं वो भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए बालों की नोक अगर देखें, स्पीयर्स के आप देखें, मेसोपोटामियन वेपन्स वर आल्सो ब्रोंज। फॉर एग्जांपल द टिप्स ऑफ द स्पीयर दैट यू सी इन द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 38। पता है कि पेज नंबर 38 पे आप देखें तो भालों की जो नोक थी वो भी किससे बनी हुई है? ब्रोंज से बनी हुई है, कांसे से बनी हुई है। फिर मैंने आपको अर्बनिज्म के बारे में बताया कि अर्बनिज्म में म्यूचुअल बॉन्डिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक्सचेंज करना वस्तुओं का। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही कि डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। It has already explained by me in the class. I also discuss about the Varka head and the story. If you see this picture, you can easily understand that the Varka head, it means this woman's head, was sculpted in white marble at about 3000 BC. Eyes and eyebrow would probably have taken lapis lazuli, blue and shade white, and bitumen, black inlay. Respectively, there is a groove along the top of the head, perhaps for an ornamental. This is a world famous piece of sculpture, admired for the delicate modeling of the woman's mouth, chin and cheeks, and it was modeled in a hard stone that would have been imported from distance. अपने के आधार पे इन चीज़ों को आसानी से आप समझ सकते हैं कि 2600 मंगाई जाती थी।
beginning with the procurement of stone, list all the specialists who would be involved in the product of such a piece of sculpture. मैंने आपको इस आर्काइड के माध्यम से ये चीज़ बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से मेसोपोटामिया के लोगों के पास वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो उन चीज़ों को लेकर के कितनी अच्छे से अपनी कला का प्रयोग करके उसको सुंदर बनाते थे। आर्काइड में आँखें देखी गहरी हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इनकी आंखों में लैपिस लेज़ुली नामक स्टोन लगाए जाते रहे होंगे, जिसका प्रयोग ये लोग करते थे। और फिर जो आईब्रो है इनकी, वो भी देखिए खाली जगह है, इस प्लेस में भी वो कुछ लगाते थे। तो वारका हेड को देखिए, चेहरे को देखिए, उसकी चेहरे के ऊपर जो भाव हैं उनको देखिए, तो लगता है कि जिसने भी इसे बनाया निश्चित रूप से वो क्या होगा, बेहद टैलेंटेड और अपने काम में एकदम अभ्यस्त है। नेक्स्ट टॉपिक हमें आज पढ़ना है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी। मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनटू सिटी, इस चैप्टर को यदि आप पढ़ें, इस चैप्टर के इस पैराग्राफ को यदि आप पढ़ें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाउ एवर रीच द फूड रिसोर्सेस ऑफ मेसोपोटामिया, इट्स मिनरल रिसोर्स वर फ्यू। मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ lacked stone for tools, seals and jewels. The wood of the Iraqi date palm and poplar was not good enough for carts, wheel or boats, and there was no metal for tools, vessels or ornaments. So we can surmise that the ancient Mesopotamian could have traded their abundant textile and agricultural procedure for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stone from Turkey and Iran or across the Gulf. These latter regions had mineral resources but much less scope for agriculture. Regular exchange possible only when there was a social organization to equip foreign expedition, and direct exchanges were initiated by the people of southern Mesopotamia. अथवा कुटिल कि किस तरीके से शहरों में वस्तुओं की आवाजाही होती थी, वस्तुओं को शहर में लाया जाता था और किस तरीके से वो बनी वस्तुएं बाहर जाती थी, इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे जिक्र करता है, उल्लेख करता है। कहता है कि मेसोपोटामिया की जो मेसोपोटामिया की फूड रिसोर्सेस हैं, खाद्य संसाधन है, चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का, मिनरल्स का हमेशा अभाव रहा है। मिनरल्स रिसोर्सेस वर, कहता है मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ लैक्ड स्टोन फॉर टूल्स। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, चाहे किसी भी चीज़ के हों, आभूषण के हों, मोहरों के हों, उन क्षेत्रों में उन पत्थरों की कमी है जिससे उपकरण बने हुए। इराकी खजूर और पोपलर के पेड़ों की लकड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई अच्छी खास लकड़ी, औजार, पात्र, गहने, कोई भी चीज़ मेसोपोटामिया में उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोगों ने, मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों ने संभवतः लकड़ी, तांबा, तांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान से अथवा खाड़ी के पार के देशों से वो मंगाया होगा, जिसके लिए वो अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। तो दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट द बार्टर सिस्टम वाज वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ द एक्सचेंज। कहता है मेसोपोटामियन कुड हैव ट्रेडेड देयर abundant textile and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stone from Turkey and Iran or across the Gulf. These later region
had mineral resource but much less scope for agriculture. Regular exchange possibly only when there was a social organization to equip foreign expedition and direct the exchanges were initiated by the people of southern Mesopotamia. इन वस्तुओं को नियमित रूप से आदान प्रदान के माध्यम से ये तभी संभव हुआ होगा जब लोग एक मजबूत सामाजिक संगठन से बंधे हों, सोशल ग्रुप्स के साथ वो अटैच हों, वो विदेशी अभियानों और विनिमय के निर्देशित करने में सक्षम हों। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की जो इस तरह के व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाए। आप इस बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन was present there in which the urbanization elements were emerged really. I hope you have remember I told you, I taught you that the what is the process to emerge the city. मैंने आपसे कहा था वहाँ पे कि सिटी का जब भी निर्माण होगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन के बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिसियंस, और आर्टिसियंस के बाद फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मार्केट, मार्केट के बाद रिच प्रॉस्परस ग्रुप, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन मोड, then after the specific center is famous for the specific mode and it has gradually changed their feature and structure, अपने स्वरूप को बदल लेती थी और वो शहर बन जाती थी। शहर कैसे बनते थे? शहर के बनने के लिए ही महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। पहला कारण मैंने कहा कि शहरों में क्या होनी चाहिए? शहर जब होंगे तो शहरों में आधुनिक सुविधाएं होंगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण शहर किसको कहेंगे? शहर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की लगभग 75% और 70% पीपल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे नहीं होते, एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं होते, वो खेती नहीं करते, खेती के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों में वो इन्वॉल्व होते हैं, खेती नहीं करते। जहाँ भी इस तरह की सिचुएशंस होंगी, परिस्थितियाँ होंगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देंगी, वो शहर कहलाएगा, न कि गाँव। दूसरा पॉइंट, शहर उसे कहेंगे जहाँ पे अत्याधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एकदम वेल मेंटेन्ड हो। चैप्टर 4, अब शहरों के लिए पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन उसका सेकेंडरी थिंग्स है। अगर ये चीज़ें हैं तो शहर अपने आप विकसित कर जाएगा, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आगे कहता है कि बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, efficient transport is also important for urban development. If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on packed animal or bullock carts, the city economy will not be viable, and the cheapest mode of transportation is everywhere over water. River boats or barges loaded with the sacks of grain are propelled by the current of river and or wind. But when animals transport goods, they need to be fed, and the canals and the natural channels of the ancient Mesopotamian were in fact the routes could transport between large and small settlements. And in the account of the city of Mari, later
In the chapter, the importance of the Euphrates and world route will become clear. कहता है कि शिल्प व्यापार और सेवाओं के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी शहरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. Besides craft, trade and service, efficient transport is also important for urban development. If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on packed animal or bullock carts, city economy will not be viable. कहता है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे जो शिल्प है, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन की आवश्यकता, कुशल परिवहन भी उत्तम प्रकार का था. ये भी उसकी विशेषता थी. भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा समय लगता था और बहुत ज़्यादा खर्च भी उठाना पड़ता था. पशुओं के चारे का खर्च भी उसमें इंक्लूड होता था, तो ऑब्वियसली वस्तुओं की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी. तो शहरी अर्थव्यवस्था का सामान्य और सबसे चीपेस्ट मोड जो था वो था जल परिवहन. नदियों के मार्ग से जहाज़ों के द्वारा, पानी के जहाज़ों और पानी की नाव के द्वारा अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा तो हवा के वेग से चलते, जिसमें ना कोई खर्चा लगता, ना ही कोई दिक्कत होती और सामान छिपड़ी आसानी से पहुंच जाती. जबकि जानवरों से अगर माल की ढुलाई की जाती थी तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता था. पुराने मेसोपोटामिया की जो नहरें थीं प्राकृतिक जलधाराओं, छोटी छोटी बस्तियों के बीच माल पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग थी, सबसे सस्ता मार्ग थी. इससे आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो और भी क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से ये नदियाँ, ये यूफ्रेट्स रिवर से व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किस तरीके से यूज किया जाता था. वर्ल्ड रूट विल बिकम क्लियर हाउ द यूफ्रेट्स. इफ यू रीड दिस चैप्टर द नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आसानी से इसको समझ सकते हैं. तो इसके अलावा आपका जब नेक्स्ट टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक? बिकॉज title of this chapter, writing and city life. What we study the city life early in this chapter. We are going to discuss the writings. So the development of writing is your next topic. All societies have language. Certain spoken sounds convey certain meanings. सभी समाजों के पास एक भाषा होती है जिसमें वो शब्दों का उच्चारण करते हैं. ये भाषा कुछ न कुछ अर्थ को बताती है, कुछ न कुछ अर्थ प्रकट करती है. स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स. इसी तरह वर्बल कम्युनिकेशन, इसी जो इस तरह से हम आपस में अपने कोई दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. बोलकर इसे मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति लिखना या कहना ज़्यादा अच्छा है. जिससे वर्बल कम्युनिकेशन, राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन, बट इन ए डिफरेंट वे. व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट, वी मीन दैट स्पोकन साउंड आर द रिप्रेजेंट इन विजुअल साउंड. एकदम क्लियर कहता है कि जब भी लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं.
जब लिखने का काम या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ, प्रोनाउंस साउंड्स, जो दृश्य संकेत या चिन्हों के रूप में प्रकट की जाती है। आई होप you can easily understand that the sign which is also mentioned in this book. The right side you can see कि आपके पास देखिए कुछ साइन बनाए गए हैं, like uniform Slavic sign. Uniform Slavic sign had some meanings. It was used by the Mesopotamian people. मेसोपोटामिया में जो पहली टेबलेट पाई गई वो लगभग 3200 BC की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, वैसे बैल, मछलियाँ, रोटियाँ आदि की लगभग 500 सूचियाँ बनती हैं, जो वहाँ के दक्षिण शहरों उरुक के मंदिरों में आने वाले और वहाँ से बाहरी वो जाने वाली चीज़ों का होता। स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और इन्हें करने वाले भी अलग अलग लोग होते थे, इसलिए इन्हें लिखने की आवश्यकता पड़ी। और ये जो लिखने की आवश्यकता पड़ी तब लोगों ने लेखन कला का विकास किया। लेखन कला कई मामलों में इम्पोर्टेंट थी। राइटिंग्स they played very important role in the various sector like trade and economy, trade and commerce, like education, like government order. As far as the matter of government order and instructions, when we will read the story of Amarkar, you will easily understand that how the king established this type of लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। अब इनके बाद अगर आप इन चीज़ों को देखें, मेसोपोटामिया wrote on tablets of clay. A scribe would wet clay and pat it into size he could hold comfortably in one hand. He would carefully smoothness its surface with the sharp end of a reed cut obliquely. He would place wedge-shaped uniform sign on the clay would harden and tablets would be almost as the indestructible as pottery. When a written records of clay, the delivery of pieces of metal, dried sign could not be placed onto table, so each transaction, however, the miner required a separate reed tablets. This is why tablets occur by the hundred at Mesopotamian sites, and it is because of this wealth of source that we know so much more about Mesopotamia than we do about the contemporary India. कहता है कि अगर लेखन प्रणाली की बात करें तो कहता है कि मेसोपोटामिया में जब मिट्टी से बने टेबलेट्स को इनमें पट्टिका कहते हैं, टेबलेट्स पे लिखा करते थे, तो पहले वो चिकनी मिट्टी को खूब गीला करते, उसे कूद कर थाप कर उसे एक चपटे एक प्लेट के रूप में एक टेबलेट के रूप में बना लेते। जब वो गीला होता तो उसी समोच पे लिख दिया जाता था। एक हाथ से आसानी में पकड़ कर उसे सावधानीपूर्वक उन सतहों को जो चिकना था उस पर यूनिफॉर्म मेथड में कुछ लिखा जाता था। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वो मिट्टी के बर्तन जैसे ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत और गैर जरूरी हो जाता था तो उसे फेंक दिया जाता था। सपोज आपने कोई हिसाब लिया बनाया और वो चीज़ें कंप्लीट हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उस पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। ऐसी टेबलेट्स एक बार जो सूख जाती थी उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे उसके बाद चाहे वह जितना ही छोटा या
अलग पट्टिका की जरूरत होती थी, उस पर लिखा जाता था और काम खत्म होने पर उसको फेंक दिया जाता था। ये जो कलेक्शन ऑफ टेबलेट्स थे, दे वर वेरी गुड सोर्स ऑफ द मेसोपोटामियन हिस्ट्री, प्रोवाइड द वेरी प्रीशियस इंफॉर्मेशन इस फैक्ट। इसीलिए मेसोपोटामिया की खुदाई क्रिया स्थलों पर बड़े संख्या में पट्टिकाएँ मिली और हम इसे सोच को सभ्यता के रूप में आज भी महत्वपूर्ण मानते हैं। लगभग 2600 BC के आसपास जो यूनिफॉर्म मेथड थी, भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का लोग इस्तेमाल किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, जमीनों के ट्रांसफ़र करने और कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजा के कार्यों का वर्णन करने और कानून में इन परिवर्तन को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा, जो देश की आम जनता के लिए बनाई जाती थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन के स्थान पर 2400 BC के आसपास धीरे धीरे अक्काडियन ले लिया। अक्काडियन भाषा में क्वीनस फॉर्म में लेखन का जो शुरुआत हुआ ईस्वी सन पहली शताब्दी तक तथा 2000 से अधिक वर्षों तक चलती रही। तो इसमें कई सारी चीज़ें उल्लेख कर रही हैं। फिर बाई 2600 BC the south later became cuneiform and the language was Sumerian. Writing was now used not only for keeping records, narrating the deeds of king and announcing the changes a king had made in the customary law of the land. Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BC by the Akkadian language. The cuneiform writing in the Akkadian language continued until the 1st century CE, is for more than 2000 years. So, on the basis of that, you can easily understand what you are saying and what was the use of the writing in Mesopotamia, how they use it. और इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ राइटिंग। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।